Okay, so let's start with Cambridge O-level chemistry, October number 2020. 1 hour, 30 minutes are given for this paper. The code is 50702020. Starting off with your section number A, which says that answer all questions in the spaces provided. Choose from the following compounds to answer these questions. Each compound may be used once, more than once, or not at all. So the first one is, which compound is a gas which dissolves in water to form an alkaline solution? तो alkaline solution इनमें से आपके पास कौन सी gas होगी? First of all, we have ammonia present as a gas. Carbon dioxide gas is given to us over here. Hydrogen chloride is also a gas. लेकिन इनमें से ammonia, when dissolves, it forms an ammonium solution, and all ammonium solutions are alkaline. So which gas is going to be? The answer will be ammonia. फिर आगे कहते हैं, इट इज एन anhydrous solid which is used to test for water. An anhydrous solid which is used to test for water, याद रखिए, copper 2 sulfate is used as a test for water. How? Anhydrous copper sulfate जब आप लेते हैं ना, it is white basically. और अगर आपने चेक करना है that if the water is pure, आप anhydrous copper 2 sulfate के अंदर ऐड करें, so the color is going to change from white to blue, which means that the anhydrous copper 2 sulfate turns into hydrated copper 2 sulfate. So the answer is going to be copper sulfate. It contains ions with a 3 plus charge. अगर आप 3 plus charge देखें तो aluminium sulfate के अंदर जो aluminium है, that is in group number 3, which contains the 3 plus ions. So it is going to be what? पूरा compound के aluminium sulfate Al2SO4 3. आपने सिर्फ नाम लिखना है यहाँ पे. आई एम राइटिंग द फॉर्मूलाज फॉर यू एज वेल, ताकि आपको पता लगे हाउ टू मेक केमिकल फॉर्मूलाज एज वेल. इट इज अ सॉलिड यूज्ड इन फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन. फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन होता है कि हम चिमनीज की जो लाइनिंग कर देते हैं ना, दैट प्रिवेंट्स द सल्फर डाइऑक्साइड फ्रॉम एस्केपिंग इनटू द एटमॉस्फेयर. फॉर दैट we use calcium carbonate, which is known as limestone. Calcium carbonate is used for flue gas desulfurization, which prevents the harmful emissions of sulfur dioxide gas. Next is, it causes eutrophication. Eutrophication आपके पास nitrates की वजह से होती है, because these nitrates are present where? In fertilizers. These nitrates are present in fertilizers. So that is going to be your potassium nitrate. इसको हम KNO3 भी कहते हैं. All right. Moving on, just a second, आप question पढ़ें, then I'll come back to it. Okay. Part of the structures, chlorine and sodium chloride are shown over here in front of you. आपके सामने chlorine and sodium chloride present है. Explain in terms of the structure and bonding why chlorine has a low boiling point than sodium chloride. Now, first of all, आप बोलोगे जो chlorine है, it is a simple molecule. Chlorine is a simple molecule, whereas sodium chloride is an ionic compound. Now, simple molecules जो होते हैं, now chlorine has a low boiling point because simple molecules have weak attractive forces. आप ये बोलोगे that it's a simple molecule and chlorine has weak attractive forces. Whereas if we talk about sodium chloride is an ionic compound which has strong attractive forces. और strong attractive forces की वजह से क्या हो रहा है? That you need more temperature in order to overcome these forces. That is why sodium chloride has a high boiling point and chlorine has a low boiling point. Write the electronic configuration of chlorine atoms. So chlorine atom is 17, तो पहले शेल में 2, दूसरे में 8 and third में 7 आ जाएगा. प्लस क्लोरीन है भी ग्रुप 7 में, तो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन में 7, आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे. The electrolysis of molten sodium chloride is carried out using graphite electrodes. State the meaning of the term electrolysis. Electrolysis is basically
मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। व्हाट इज इलेक्ट्रोलिसिस? इट इज द breakdown of a molten ionic compound by passing current. This is going to be what? This is known as electrolysis. State the direction of the movement of both the positive and negative ions when molten sodium chloride is electrolyzed. So positive ions आपके पास कहाँ move करेंगे? Towards the negative electrode, which is known as the cathode. और negative ions कहाँ move करते हैं? Towards the positive electrode, which is the anode. State one observation that can be made at the positive electrode when molten sodium chloride is electrolyzed. अब सोडियम क्लोराइड के अंदर क्या क्या होता है? Na प्लस और Cl माइनस। तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे जो Cl माइनस आयंस होंगे ना, दे आर गोइंग टू फॉर्म व्हाट? द क्लोरीन गैस। और क्लोरीन गैस की ऑब्जर्वेशन क्या होती है? इट्स अ ग्रीन, ग्रीन आपको नजर आएगा, ग्रीन गैस विल बी फॉर्म्ड। अ ग्रीन गैस विल बी ऑब्जर्व्ड, क्योंकि पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होगा। और अगर वो पूछता है कि नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे क्या होगा, तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे पॉजिटिव सोडियम आयंस जाएंगे, दे आर गोइंग टू फॉर्म व्हाट? सोडियम सॉलिड। वहां पे आपके पास सोडियम सॉलिड डिपॉजिट हो जाएगा। लेकिन पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे क्लोरीन नेगेटिव आयंस जाके Cl2 गैस बेसिकली प्रोड्यूस कर देंगे ना। गिव द फॉर्मूला ऑफ द टू नेगेटिव आयंस प्रेजेंट इन aqueous सोडियम क्लोराइड। एक्वस सोडियम क्लोराइड की जब बात करते हैं तो पहला नेगेटिव आयन तो क्लोरीन होगा, बट जो सेकंड होगा दैट वुड बी हाइड्रोक्साइड। और अगर वो पूछता दैट व्हाट आर द टू पॉजिटिव आयंस दैट आर प्रेजेंट, फिर आप क्या कहते हैं? NH प्लस एंड Na प्लस। When aqueous sodium chloride is electrolyzed, hydrogen is produced at the negative electrode. Explain in terms of transfer of electrons why hydrogen and not sodium is produced at the negative electrode. Because जो आपके पास H plus ions होते हैं, हाइड्रोजन बेसिकली इज फर्स्ट ऑफ ऑल बिलो, किसके? बिलो सोडियम इन द रिएक्टिविटी सीरीज। पहली बात तो हमें ये पता है। प्लस इट इज लेस रिएक्टिव, इट इज लेस रिएक्टिव। जो हाइड्रोजन होता है वो थोड़ा सा आपके पास नीचे फॉल करता है। और लेस रिएक्टिव मीनिंग के ये लूज तो लेस इजिली करेगा, बट इट गेन्स इलेक्ट्रॉन्स इजिली, इट गेन्स इलेक्ट्रॉन्स इजिली। ये है वो मेन चीज जो आपने यहाँ पे लिखनी है कि व्हाई इज हाइड्रोजन सिलेक्टेड एंड नॉट सोडियम। A 36.3 sample of compound contains 14.4 carbon, 0.6 gram hydrogen, 21.3 grams of chlorine. We have to find the empirical formula of the compound. तो इस कंपाउंड में कौन कौन से हैं? कार्बन प्रेजेंट है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है और क्लोरीन भी प्रेजेंट है। सबके मास क्या है? 14.4। हाइड्रोजन कितना है? 0.6। क्लोरीन कितना है? 21.3। मूसा कैलकुलेटर निकाल लो। समवन प्लीज टेक आउट अ कैलकुलेटर। मूसा इफ यू कैन हियर मी, ठीक है। कार्बन को डिवाइड बाय इसके कर देंगे, हाइड्रोजन का MR1 होता है, और क्लोरीन के मास को भी हम उसके MR से डिवाइड कर देंगे, विच इज 35.5। तो हमने सबसे पहले क्या किया? हमने सबके मैसेज लिख दिए और उन सबको हमने उनके MR से डिवाइड करने। मूसा व्हाट इज 14.4 डिवाइड बाय 12? 1.2। 1.2। 0.6 डिवाइड बाय 1 हो जाएगा 0.6। एंड व्हाट इज 21.3 डिवाइड बाय 35.5? 0.6। 0.6। इनमें तीनों में से स्मॉलर नंबर कौन सा है? 0.6। तो हम सबको किससे डिवाइड करेंगे? द स्मॉलेस्ट नंबर। तो हमारे पास 0.6। क्या आंसर रेशो आ जाएगी? हमारे पास रेशो आ जाएगी 2:1:1, विच मीन्स के इम्पेरिकल फॉर्मूला 1:1। C2H1Cl1। C2HCl विल बी योर इम्पेरिकल फॉर्मूला। वो कह रहे हैं कि जो रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास है 181.5 है, दिस इज द MR। हमने निकालना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो सबसे पहले हम निकालेंगे क्या? एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, EFM। हाउ डू वी कैलकुलेट द एम्पिरिकल फॉर्मूला मास? C2HCl था ना, तो मूसा 12 × 2 प्लस 1 प्लस Cl का क्या होता है? 35.5। व्हाट्स द आंसर? फिर 60.5। 60। 0.5। 60.5 आ गया, ठीक है। ओके, अब हमने निकालना है N। N कैसे निकालेंगे? मोलेक्युलर फॉर्मूला मास डिवाइडेड बाय द एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। तो मोलिकुलर फॉर्मूला मास उस हमें क्वेश्चन में दिया 181.5 डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास क्या है? 60.5। क्या आंसर है?
3। ठीक है, हमारे पास जो n की वैल्यू आ गई वो आ गई 3। अब हमने क्या करना है कि हमने इस 3 को मल्टीप्लाई कर देना है C2HCl से। तो आंसर क्या आ जाएगा? 2 3 * 6, C6H3Cl3 CM3। विल बी योर मोलिकुलर फॉर्मूला। क्लियर हो गया? जी सर। ऑलराइट शोएब, कैन यू हेयर मी? इज दिस क्लियर? यहाँ तक सारा हो गया क्वेश्चन नंबर 1 and 2? जी सर। गुड जॉब। क्वेश्चन नंबर 3 पे स्टार्ट करते हैं। ड्रॉप ऑफ ब्लैक इंक इज प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ बीकर ऑफ वाटर। आफ्टर टाइम द कलर ऑफ द इंक स्प्रेड्स थ्रू आउट द वाटर। एक्सप्लेन दिस ऑब्जर्वेशन इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी। तो सबसे पहले, दिस इज हैपनिंग बाय डिफ्यूजन, स्प्रेडिंग ऑफ अ पार्टिकल्स। ये बेसिकली क्या है? इट्स स्प्रेडिंग ऑफ अ पार्टिकल फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई concentration to low concentration, and this is also a result of the random movement of particles. आपको कोई external energy तो required नहीं है। This is as a result of the random movement, and this is how the particles are mixing mixing with each other. और ये तब तक होती रहेगी डिफ्यूजन until unless this process has reached up to equilibrium. So the process is diffusion where the particles move from a region of a higher concentration to a region of a lower concentration down the concentration gradient as a result of random movement, and hence they mix with each other and the ink spreads throughout the water. This will be your answer. In the past, ink was made from a mixture containing iron 2 ions and tannic acid. Describe a test for iron 2 ions. तो cations के टेस्ट के लिए हम क्या ऐड करते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड। और ऑब्जर्वेशन क्या आती है इसकी? ग्रीन प्रेसिपिटेट। दिस इज द टेबल फ्रॉम योर टेस्टिंग फॉर cations वाला टेबल होगा मेरे लेक्चर्स में, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स वाले चैप्टर में। The ink darkens when used on paper. This is because iron 2 ions are oxidized to iron 3 ions. Write the ionic equation for this reaction. तो Fe2 प्लस आयंस जो हैं दे आर गोइंग टू बी ऑक्सीडाइज्ड। ऑक्सीडाइज होते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स एरो के बाद लिखते हैं, क्योंकि Fe2 प्लस ने एक और इलेक्ट्रॉन लूज किया है तो उसने Fe3 प्लस आयन फॉर्म कर दिया है। whenever it's a reduction equation तो हम इलेक्ट्रॉन्स को हमेशा एरो से पहले लिखेंगे। After a time, the ink fades because of a hydrolysis reaction which is catalyzed by acid. State how the catalyst increases the rate of chemical reaction. Catalyst basically क्या करता है? It lowers the activation energy. Actually, everything is basically increasing rate of reaction. जैसे टेम्परेचर भी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाता है, प्रेशर ही बढ़ाता है, कंसंट्रेशन ही बढ़ाता है। लेकिन आपको स्पेसिफिक पता होना चाहिए कि ये वाला फैक्टर कैसे बढ़ा रहा है। टेम्परेचर क्यों बढ़ाता है? रेट ऑफ रिएक्शन काइनेटिक एनर्जी बढ़ा के। कॉन्सेंट्रेशन कैसे बढ़ाती है रेट ऑफ रिएक्शन? जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा हो जाते हैं तो चांस ऑफ फ्रीक्वेंट कोलिजन्स बढ़ जाता है। प्रेशर कैसे बढ़ाता है? प्रेशर से भी चांस ऑफ कोलिजन्स बढ़ जाते हैं। टेम्परेचर क्या करते हैं? काइनेटिक एनर्जी और स्पीड बढ़ा देता है कोलिजन्स की। कैटलिस्ट क्या कर रहा है? एक्टिवेशन एनर्जी लोअर कर रहा है। तो आपको सबका स्पेसिफिक पता होना चाहिए कि ये फैक्टर अलग अलग कैसे बढ़ा रहा है रेट ऑफ रिएक्शन को। Paper is made of cellulose, and cellulose is a complex carbohydrate, a polysaccharide. Name one other complex carbohydrate। तो उसमें आपके पास स्टार्च भी है एग्जाम्पल, आपके पास स्टार्च नहीं तो आप ग्लाइकोजन। ठीक है, glycogen is also an example. Describe how complex carbohydrates can be hydrolyzed to simple sugars by heating. लेकिन सिर्फ हीटिंग नहीं, विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये ज्यादातर सवाल वहां भी आता है, ये बायो के स्टूडेंट्स भी पढ़ते हैं। इफ एनी वन ऑफ यू इज बायो स्टूडेंट, के जब वो बेनेडिक्स रिएजेंट टेस्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के लिए, वहां भी इन अ बेनेडिक्स टेस्ट दे हीटेड विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। Moving on to question number 4. Water from natural sources contains dissolved substances which are not pollutants, such as mineral salts. Name another substance found in water which is not a mineral salt or a pollutant. That is going to be oxygen. एक्वाटिक लाइफ के लिए वहां पे ऑक्सीजन तो हमेशा प्रेजेंट है। आपके पास एक्वाटिक प्लांट्स भी है, एक्वाटिक लाइफ भी है, जिंदा है। व्हेन लिथियम रिएक्ट्स विद वाटर इट फॉर्म्स लिथियम हाइड्रोक्साइड। उसकी इक्वेशन हम यहाँ पे लिख लेते हैं। लिथियम प्लस वाटर फॉर्म्स व्हाट? LiOH। हमेशा ना स्पेस छोड़ दिया करें, क्योंकि हमें नहीं पता हो कि बैलेंसिंग करनी पड़, जब करनी पड़ेगी ना। दिस इज अ बैलेंस्ड इक्वेशन। प्लस वो कह रहे हैं हाइड्रोजन इज ऑल्सो फॉर्म्ड। Sodium and potassium react with water in a similar way to lithium. Explain in terms of the electronic configuration why lithium, sodium, and potassium all react in the
similar way because they are all in the same group, all in same group. लेकिन this is not the complete answer. All in same group means they all have one electron in valence shell. याद रहे, फिजिकल प्रॉपर्टीज किसी भी चीज की उसके मास पे डिपेंड करती है, केमिकल प्रॉपर्टीज उस चीज की उसके नंबर ऑफ आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करती है। तो इन सब के आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन में वन इलेक्ट्रॉन है। डिस्क्राइब द ट्रेंड इन रिएक्टिविटी इन ग्रुप वन एलिमेंट्स। तो जैसे जैसे आप नीचे जाते हो रुबीडियम और फ्रांशियम की तरफ, रिएक्टिविटी इंक्रीज करती है। Water and oxygen are formed when aqueous hydrogen peroxide decomposes. Calculate the maximum volume of oxygen at room temperature and pressure, which is so यहाँ पे we have to calculate the maximum volume of oxygen। तो 16 grams of hydrogen peroxide हमें यहाँ पे दिया हुआ है। और हमने क्या निकालना है, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। सबसे पहले मैंने ट्रिक आप सबको क्या बताई, जिसका डाटा दिया होता है ना, पहले भूल जाओ उसने क्या पूछा है क्वेश्चन में। ठीक है, शोएब, आई थिंक यू वर आल्सो इन द फर्स्ट टू क्लासेस। निकालना हमने है मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। डाटा किसका दिया हुआ है, उसके पहले हम मोल्स निकाले थे। डाटा तो हमें उसने दिया हुआ है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का। तो जिस तरह की मैं यहाँ वर्किंग करूँ वैसे ही आपने वहां पे करनी। मूसा जैसे आप करते हो डायरेक्ट वर्किंग, यू हैव टू अवॉइड दैट। हम यहाँ पे कैसे वर्किंग कर रहे हैं समझ आ रही है ना। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O2, फॉर्मूला वो था, ठीक ठीक है है। सारा ऐसे कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O2, इसका मास क्या है 16 डिवाइड बाय इसका MR क्या होता है, जल्दी से निकालें। 1+1 प्लस 16+16 34। ठीक है, 34। 16 डिवाइड बाय 34, आपके पास आंसर क्या आ रहा है, 0.5 समथिंग 47। ठीक है, 0.47 आपके पास मोल्स आ गए। अब सवाल ये है हमें निकालना क्या था, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन का फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय 24 dm³। क्या हमारे पास ऑक्सीजन के मोल्स हैं, नहीं। शोएब कैन यू टेल मी हमारे पास ऑक्सीजन के मोल्स अब कैसे आ सकते हैं, रेफर टू द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब सर वो जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड के मोल्स हैं उसको डिवाइड कर देंगे 2 से। क्यों करेंगे, बिकॉज हम यहाँ पे पहले बताएंगे साइड पे कि H2O2 का रेशो जो आप लेते हो ऑक्सीजन से, इन दोनों के दरमियान बैलेंस की वजह से रेशो क्या है, 2:1। ठीक है, फिर हम मोल्स लिखेंगे यहाँ पे किसके, 0.47, और इसके हम लिखेंगे x। तो 2x इज इक्वल टू 1 × 0.47। तो हाँ, इनके दरमियान अगर 1:2 है, विच मीन्स अगर दो हाइड्रोजन पेरोक्साइड और एक ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के मोल्स हो जाएंगे हाफ ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। क्या हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 0.47 × 1, देन x वुड बी इक्वल टू 0.47 डिवाइडेड बाय 2, इस तरह से। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आ जाएंगे 0.235, एंड यू कैन मल्टीप्लाई इट विद 24, एंड दैट्स व्हेन you'll get your answer which is 5.65 dm³ will be your answer. A fuel generates electricity when hydrogen and oxygen react on platinum electrodes. Name a process used in industry to produce hydrogen. किसी भी आप एल्केन को, एक लार्ज एल्केन की जो हम क्रैकिंग करते हैं, दैट प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन। Some cars use a hydrogen oxygen fuel cell instead of a petrol gasoline engine. Describe advantages of hydrogen oxygen fuel cell. No pollution, renewable energy source है, no pollution, और नो हार्मफुल नहीं, वो भी वही चीज़ हो जाएगी। इट्स अ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, कैन बी रीयूज्ड एज वेल। ठीक है, और इको फ्रेंडली है, ऊपर वाले में आप ये भी लिख सकते हो, इट्स इको फ्रेंडली। मूविंग ऑन, alkenes are made in an oil refinery by cracking hydrocarbons. Give one reason why petroleum companies carry out cracking. क्योंकि they want to make fuels which are in demand. अब वो बड़े बड़े जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, ऑक्टेन डेकेन, उनकी ज़्यादा डिमांड नहीं होती। सो टू मेक फ्यूल्स विच हैव डिमांड, ठीक है, विच हैव डिमांड, इसलिए क्रैकिंग की जाती है।
और डिमांड किन की है? स्मॉल एल्केन्स की, जो स्मॉल एल्केन्स है। कंप्लीट द इक्वेशन फॉर द क्रैकिंग ऑफ ट्राइडेकेन टू फॉर्म प्रोपीन एंड अनदर हाइड्रोकार्बन। तो एक तो प्रोपीन बन गया, पीछे अभी कितने कार्बन और रहते हैं? वी हैव 10 कार्बन लेफ्ट, और जी 6 हाइड्रोजन तो यहाँ आ गए। 28 - 6 क्या होता है मूसा? 22 H22। 22 ठीक है। राइट द जनरल फॉर्मूला फॉर एन एल्कीन, CnH2n. Propene reacts with steam by an addition reaction. Predict the molecular formula of the product of this reaction. तो इसका जो प्रोडक्ट हो जाएगा, जब भी आपके पास स्टीम के साथ आप रिएक्ट करवाते हो किसी भी एल्कीन को, याद रखो, whenever an alkene is reacted with steam, इसको हम हाइड्रेशन रिएक्शन कहते हैं। और जो प्रोडक्ट होता है दैट इज व्हाट? एन अल्कोहल। तो आप प्रोपीन को स्टीम के साथ कराओगे तो प्रोपानॉल बन जाएगा, लेकिन हमने उसका मोलेकुलर फॉर्मूला बताना है ना। तो ये तो मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, आपने ये बताना है C3H7OH। ये है केमिकल फॉर्मूला। मोलेकुलर फॉर्मूला वुड बी C3, टोटल H कितने हैं? 8, और एक ऑक्सीजन। This would be the molecular formula. When propene undergoes incomplete combustion, incomplete combustion में याद रखें कब होती है? जब ऑक्सीजन कम अमाउंट्स में हो। तो आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड के बजाय क्या बनता है? कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाता है। कंप्लीट कंबशन हो तो क्या बनते हैं मूसा? व्हाट आर द टू प्रोडक्ट्स व्हेन वी हैव कंप्लीट कंबशन? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। जब इनकम्प्लीट कंबशन होगी तो आपके पास ये हार्मफुल गैस कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी, जिसको हम CO और कहते वाटर। हैं, और साथ वाटर बनेगा। लेकिन कंप्लीट जी में कार्बन डाइऑक्साइड। अब हम बनाएंगे पॉलीप्रोपीन। पॉलीप्रोपीन कैसे बनाते हैं? सबसे पहले आपने इसका डबल बॉन्ड तोड़ना है, ठीक है ना? जस्ट अ सेकंड, आई विल। ऑलराइट, apologies फॉर द डिलेस। ओके। अब जब भी आपके पास कोई पॉलीमर बनाने को आता है, इसके कुछ तरीके होते हैं, ठीक है? सबसे पहले आप वो चीज सिलेक्ट कर लो, सिलेक्ट दोज 2 कार्बन जिनके दरमियान एक डबल बॉन्ड है, ठीक है? वो 2 कार्बन चूज कर लें जिनके दरमियान डबल बॉन्ड है। अब देखो कि राइट वाले कार्बन के ऊपर क्या क्या लगा हुआ है? एक हाइड्रोजन, और नीचे भी एक हाइड्रोजन है। फिर इस वाले कार्बन के ऊपर क्या लगा हुआ है? एक हाइड्रोजन, लेकिन नीचे वाले पे क्या लगा हुआ है? ये पूरा CH3। गॉट इट? ये लिख लोगे ना जब, ठीक है? हमने सबसे पहले कौन से 2 कार्बन सेलेक्ट किए जिनके दरमियान डबल बॉन्ड था। फिर हमने सबके ऊपर लिखे कि पहले कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन है और दूसरा हाइड्रोजन है, और दूसरे वाले कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन है और एक पूरा CH3 लगा हुआ था। लिख लिया यहाँ पे। अब आपने क्या करना है? इसका एक डबल बॉन्ड, इसको सिंगल करना है। अब वहां पे ऑब्वियसली इरेजर नहीं होगा तो डायरेक्ट सिंगल बॉन्ड बना देना, ये तो मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ। फिर आपने इसके राइट और लेफ्ट पे क्या करना है? ओ अच्छा, हमने 3 रिपीट यूनिट्स दिखाने हैं, शाबाश। तो 3 रिपीट यूनिट्स दिखा देते हैं, ठीक है? समझ आ गया मूसा? इज इट क्लियर? शोएब? जी सर ठीक। ओके। इस तरह करके यू आर गोइंग टू शो द 3 रिपीट यूनिट्स, एंड दैट इज द एंड ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं जी। Methanoic acid and ethanoic acid are weak acids. What does the term weak mean when it's applied to acids? तो weak का मतलब होता है acid which partially
आयोनाइजेस इन वाटर। जो फुली आयोनाइज होगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। मिथेनोइक एसिड रिएक्ट्स विद मैग्नीशियम पाउडर, HCO2H जो है वो रिएक्ट कर रहा है मैग्नीशियम के साथ। तो जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, मैग्नीशियम के ऊपर चार्ज होता है +2। तो जो ये HCO2 होगा, ठीक है, H तो रिमूव हो जाएगा यहाँ से, इसके साथ बॉन्ड कर जाएगा मैग्नीशियम। क्योंकि मैग्नीशियम का चार्ज था +2, तो इस पूरे HCO2 के साथ क्या आ गया है 2। और ये जो हाइड्रोजन यहाँ से लूज हुआ है ये यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा, बिकॉज acid plus metal forms salt and hydrogen. State and explain how the rate of this reaction changes when the experiment is heated using a piece of magnesium ribbon with the same mass as the powder. All other conditions stay the same. So क्या होगा, रेट आपके पास डिक्रीज कर जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने मैग्नीशियम रिबन यूज कर दिया है। पहले क्या था, पाउडर। पाउडर अच्छी चीज थी ना, पाउडर का तो सरफेस एरिया ज्यादा था। जो पाउडर होता है दे हैव अ ग्रेटर सरफेस एरिया बिकॉज दे आर मोर एक्सपोज्ड। आप उस पाउडर की जगह अब एक रिबन ले आए हो मैग्नीशियम का, ये तो एक पूरी चीज होगी। इसकी वजह से क्या हुआ है, द रेट हैज डिक्रीज्ड, रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाएगा बिकॉज सरफेस एरिया कम हो जाएगा। सरफेस एरिया का मतलब बिकॉज द पार्टिकल्स दैट वर एक्सपोज्ड आर लेस, सो द नंबर ऑफ कोलिजन्स will also decrease. Methanoic acid reacts with propanol to form an ester. तो एस्टर का नाम क्या होगा? कैन समवन टेल मी द नेम ऑफ द एस्टर? शोएब, टेल मी द नेम ऑफ द एस्टर। हमने फर्स्ट क्लास में देखा था एक तरीका। हाउ विल वी डिटरमिन व्हाट विल द नेम ऑफ द एस्टर बी? जो हमारे पास अल्कोहल प्रोपेनॉल है। हाँ जी बताएं। सर प्रोपल मेथेनॉइड। यस, प्रोपाइल और मिथेनोएट। एग्जैक्टली, प्रोपेनॉल से निकला प्रोपाइल, मिथेनोइक एसिड से मिथेनोएट। स्ट्रक्चर बना लेते हैं। पहले हम प्रोपेनॉल बना लेते हैं, पहले मिथेनोइक एसिड बना लें। HCOOH, ये क्या हो गया, मिथेनोइक एसिड। और प्रोपेनॉल क्या होता है, 1 2 3 कार्बन, जिसके साथ लगा होगा एक OH। और बाकी आपके पास C3H7OH होता है ना प्रोपेनॉल। रेस्ट ऑफ दीज आर व्हाट, हाइड्रोजन्स। नाउ वी आर गोइंग टू फॉर्म एन एस्टर बॉन्ड ओवर हेयर। ठीक है, एस्टर बॉन्ड कैसे बनाते हैं ये तरीका भी आना चाहिए है। We always remove the OH from the carboxylic acid and we remove the H from the alcohol, ताकि हम वाटर को रिमूव कर सके। रिमेंबर, OH अल्कोहल से नहीं लेना, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड के पास ऑलरेडी 2 ऑक्सीजन है, इससे इससे लेना है ऑक्सीजन आप लोगों ने, ठीक है। अल्कोहल के पास तो एक ही है। तो हम यहाँ से वाटर को एलिमिनेट कर देंगे। और जब हम वाटर को एलिमिनेट करेंगे तो बॉन्ड इनके दरमियान जो फॉर्म हो जाएगा, दिस इज नोन एज द एस्टर लिंकेज। Ethanoic acid is present in vinegar. Name the organic compound which is converted to ethanoic acid when vinegar is made. तो ऑब्वियसली इथेनॉइक एसिड बनाने के लिए आपके पास इथेनॉल की ऑक्सीडेशन हुई होगी, क्योंकि आप इथेनॉल की ऑक्सीडेशन करते हो तो ही इथेनॉइक एसिड बनेगा। प्रोपेनॉइक एसिड बनाने के लिए प्रोपेनॉल की ऑक्सीडेशन करोगे, तो ये क्या केमिकल रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन। वी ऐड ऑक्सीजन टू अल्कोहल्स टू मेक कार्बोक्सिलिक एसिड। प्रिडिक्ट द डेंसिटी ऑफ इथेनॉइक एसिड। अगर हम मिथेनॉइक से इथेनॉइक से प्रोपेनॉइक से ब्यूटेनॉइक जा रहे हैं, तो मूसा कैन यू टेल मी व्हाट आर द ट्रेंड्स इन डेंसिटी? सर पहले तो माइनस हो रहा है, कितना हो रहा कम हो रही है ना, है, 1.22 कम से हो 0.99 से 0.96। तो इसकी प्रिडिक्ट जी। करें क्या होगी फिर? इसकी होगी सर 1 से लेके हाँ, वन पॉइंट वन टेन पॉइंट वन जीरो कर लेते हैं, ठीक है। 1.10 बहुत से तक आंसर्स रहेगी। एक्सेप्टेबल होते हैं। ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। Describe and explain the change in the boiling point as the number of carbons in the molecules increases. So remember, boiling points will increase as well when the number of carbon atoms increase, because the intermolecular forces of attraction also increase, and hence वही जवाब है, more heat and energy will be required to overcome these intermolecular forces. हमने इनको ओवरकम करने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी, सो द बॉइलिंग पॉइंट इज गोइंग टू इंक्रीज।